Everyone, welcome to Orca Tracker 50 30 20 budget tracker because uh, today we are going to see how I use this in my day-to-day life, and you also teach you like how to use it. It's a very simple and easy to use. So this is like Google Sheet spreadsheet, and why I don't recommend you to go for Excel sheet, and I don't provide because Excel is like paid version. Okay, I don't want you to pay for like Excel and Microsoft Office. It's very expensive also, and I don't think it's important because both are same. Like Google Sheet is way more better and easy to use than Excel. Yeah, I know for people who are using like data entry and like you know for data science, they are using Excel, and if you're using for tracking, it's more than enough. And Google Sheets is the best because it's free and it's provided by Google, and you can use in app also, and it's very convenient. So okay, let's stick to it. For what is 50 30 20 budget? Okay, let's discuss this. Why it is important for you to track in this format rather than anything else, because it's very simple. First of all, it's 50 30 20 budget is very simple and easy to use for any beginner who wanted to give a structure to their incomes and finances, and like track their money and live a simple and a stable life. Okay, so it's a monthly budget tracker. So first of all, you're gonna see there is like tabs. Okay, and if you are doing budget, you can add that month over here. So first of all, for example, let me show you. This is the like uh, empty template. Okay, so you need to just right click and duplicate it. You can do it as well in your mobile phone also. When you duplicate, you get a similar one, so you can add for more months if you wanted. So basically, for example, I copied, and now I want to do budget for example, June 2025. So for me, I'm making budget for my June 2025. So yeah, you go over here and click June, any date. So the month is here, and the date also over here. So it's very easy to choose the month you're gonna budget. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ एन इनकम टैब. ओके, आप इनकम टैब आपको मिलेगा, एंड देन आपको थ्री पोर्शन नीड्स, वांट्स, सेविंग्स, 50%, 30%, 20% आपको यहाँ पे टैब मिलेगा, जिसके अंदर आप अपना प्रोडक्ट, अपना जो सब कैटेगरी है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं. जैसे मैं आगे आपको बताऊंगा, उससे पहले देख लेते हैं इधर क्या है. एक्सपेंस समरी है. एक्सपेंस समरी में आपका नीड, वांट, सेविंग्स में मंथली गोल कितना होना चाहिए, आप जब उसका एंट्री करेंगे तो आप उस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा. सो लेट्स सी द डेमो. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ इनकम टैब. सोचिए ये मेरा फ्रेंड का है, उनका वो एएसओ है, उनका हस्बैंड एएसओ है, एंड शी इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो ठीक है, उनका जो बजट, मतलब उनका जो मंथली बजट होता है, बजट मीन से एक्सपेक्टेशन लाइक कितना इनकम होगा, एंड सिमिलरली एक्चुअल में उनका इनकम कितना हुआ है, एंड साइड इनकम कितना होता है. सो दे एडेड फॉर हियर, एंड देयर इज़ लाइक टोटल. टोटल इनका इतना बनता है, 1,33,000 मंथली इनका इनकम होता है. सो ये इनकम से ऑटोमेटिकली ये एक्सपेंस सबरी में आ जाएगा कि आपको मंथली गोल कितना होना चाहिए. जैसे नीड्स में हो गया 66,500, एंड वांट्स में हो गया 39,900, एंड सेविंग्स में हो गया 26,600. सो ये आपका मंथली गोल इतना होना है, मतलब दैट इज़ मैक्सिमम. कि नीड्स में आपका 66,500 से ज़्यादा नहीं होना है यहाँ पे, वांट्स में 39,900 से ज़्यादा नहीं होना, एंड सेविंग्स पे 26,600. तो सब चीज़ बैलेंस में चलेगा. सो उसके बाद इट्स हैपन्स कि आपका कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, एज़ पर योर हर मंथ सेम नहीं होता है. दैट्स फाइन. इधर आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने क्या क्या है ये. सो बेसिकली आपको अगर कभी ये कम पड़ रहा है ये जो रो, सो यू कैन गो एंड यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है. उसके बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट रो अबाव या बिलो आप ऐड करेंगे. यहाँ पे आपका ये होगा यू आर एडिटिंग, बिकॉज मैंने यहाँ पे प्रोटेक्शन यूज़ किया है ताकि कोई भी बहुत सारा फार्मूला यूज़ हो तो आप यूजर्स बाय मिस्टेकली उसको चेंज ना कर दे. तो इफ आप ये सब चेंज करते हैं तो ओके, इट्स फाइन.
इसको आपको एक बार रिव्यू करके फिर आपको ऐड करेंगे तो एक रो ऐड हो गया। तो ये कोई बात नहीं, ये आपको कुछ ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। आपको अगर ये चाहिए तो ये रो यहाँ पे, सो यू कैन ऐड इट। अगर आपको कम पड़ रहा है नहीं तो जितना है आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। सो ऐसा करके आप किसी भी ऐसे रो ऐड कर सकते हैं। और फॉर अनदर थिंग, यहाँ पे जो वाइट पार्ट है उसी को आप एडिट करिए, बिकॉज जो कल शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट को आप बिल्कुल एडिट ना करें और कलर्ड पार्ट को एडिट मत करें। बट आप मंथली, यहाँ जो मंथली रिव्यू है आपका हिसाब से आपको क्या नोट्स है या फिर आपको कुछ चीज़ आपको याद रखना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यू कैन यूज़ दिस टैब टू राइट योर मंथली रिव्यूज़, ठीक है। जितना कि इसमें आपका कितना खर्चा करना है, आपको कुछ चीज़ याद रखना है, तो सब एक ही में आप यहाँ पे एज अ टू डू लिस्ट जैसा यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप खुद को रिमाइंड करा सकते हैं कि मंथली आपको क्या क्या खर्चा करना है, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, क्या सब्सक्रिप्शन है, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। आपने पे कर दिया है एंड ऑल, सो आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे रिव्यू लिख सकते हैं, ओके। एंड ये जो पार्ट है डिफरेंस, ये शेडेड पार्ट है, कुछ नहीं करना है। बट यहाँ पे जैसे सब कैटेगरी में आपका नीड्स का अंदर आ गया, हाउसिंग, यूटिलिटीज़ एंड ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर एंड ऑल ऑफ दैट, एंड सब कैटेगरी में आ गया। सो ये कैसा आपको ये जो सेविंग, बॉन्ड्स एंड नीड्स में आपको कैसा चूज़ करना है, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये 50-30-20 बजट है क्या और आपको ये कैसा यूज़ करना है। यहाँ पे लेफ़्ट ओवर में आपको दिखेगा कि आपका पास कितना मनी बजट के लिए बचा हुआ है, एक्चुअली में आपका पैसा कितना बचा हुआ है, ठीक है। आपका अगर इनकम इतना हो रहा है तो एक्चुअली में आप कितना खर्च कर चुके हैं और कितना बचा हुआ है, तो ये यहाँ पे दिखेगा। माइनस में है मतलब आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया, अगर ज़ीरो है तो मतलब आपका बराबर सब खत्म हो गया, इट इज़ टोटली ज़ीरो बेस बजट, ठीक है। सो यहाँ पे आपका चार्ट दिखेगा, एक्चुअल परसेंटेज मतलब नीड, वांट्स, सेविंग्स का, एंड बजट एंड एक्चुअल का जो ग्राफ है यहाँ पे आपको दिखेगा। इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी टू यूज़, ठीक है। एंड देन अभी हम चलते हैं कि हम समझते हैं कि नीड्स, वांट्स और सेविंग्स को हम कैसे कैटेगराइज करें। तो चलिए देखते हैं। पहले तो देखते हैं व्हाट इज़ 50-30-20 मेथड। दिस इज़ मनी मैनेजमेंट रूल, ठीक है, दैट हेल्प्स यू डिसाइड हाउ टू स्पेंड योर इनकम वाइजली। डिवाइड योर मनी मंथली इनकम इंटू 3 पार्ट्स। आपको पहले जितना भी इनकम आपका होता है ना, सो इट्स यू हैव टू डिवाइड इंटू 3 पार्ट्स, 50-30-20%, ठीक है। 50% आपका नीड्स का मतलब क्या होता है, जिसका बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, जैसे खाना हो गया, आपका घर का रेंट हो गया, मेडिसिन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, ये सब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पे करना ही है, यू मस्ट पे देम, ठीक है। एवरी मंथ आपको पे करना ही है, इसके लिए आप काम कर रहे हैं ना। सो बेसिक नेसेसिटी आपका जो है उसके लिए आप 50% आपको निकालना है, ठीक है। 50% आपका उसमें चले जाएगा। सो यू हैव टू एडजस्ट 50% ऑफ योर इनकम इन नीड्स। एंड देन 30% पे आते हैं। 30% में क्या होगा, 30% वांट्स, मतलब आप अभी कमा रहे हैं एंड यू वांट टू लिव योर लाइफ एंड इन्जॉय लिटिल बिट, ओके। जैसे शॉपिंग हो गया, बाहर खाना हो गया, दोस्तों के साथ घूमना हो गया, पार्टी हो गया एंड ट्रिप्स हो गया, मूवीज़ हो गया, हॉबीज़ हो गया, ये सब जो बहुत नेसेसरी नहीं है लेकिन ये आपका लाइफ में इंजॉय ऐड करता है। यू फील सेटिस्फाइड डूइंग थिंग्स लाइक दिस। सो आपको पैम्पर करना हो गया, यू नो, पर्सनल केयर एंड ऑल, तो उस चीज़ के लिए 30% आपको देना है। ज़्यादा नहीं देना, कम नहीं देना, 30% देना है। आप अगर ज़्यादा है तो फिर आप यू टू बैलेंस आउट एंड कम टू 30%, बिकॉज आपके लिए सेविंग्स भी करना बहुत ज़रूरी है। तो सेविंग्स पे आपका 20% तो होना ही है। इफ़ यू आर पर्सन लाइक मी हु डोंट लाइक द गोइंग आउट एंड यू, आप यहाँ से पैसा बच जाता है तो आप सेविंग्स पे उसको डाल दीजिए, ठीक है। मैं वही करता हूँ क्योंकि मैं उतना घूमता नहीं हूँ, यू नो, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट करता है, लेकिन आपका 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुछ बैलेंस नहीं होगा। तो ये दिमाग में आपको रखना है। 20% आपका कहाँ पर जाएगा, सेविंग्स। और डेट रिपेमेंट, डेट रिपेमेंट बोलने से आपका कोई लोन है तो वो आपको चुकाना पड़ेगा, तो उसके वजह से आप मतलब आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा टाइट हो जाता है। आपका पास लोन है तो उसके हिसाब से आपको 20% देना पड़ेगा, ताकि क्या ये भी आपका डेट हो वो भी आप पे कर ले। नहीं तो आपका सेविंग्स जैसे कि एफडी हो गया, एसआईपी हो गया, पीपीएफ फंड हो गया एंड स्टॉक्स हो गया एंड सेविंग इमरजेंसी फंड हो गया, ताकि आपका जो ग्रो है, आप अपना वेल्थ को बिल्ड कर पाए, ग्रो कर पाए, फाइनेंशियली आप अपना सिक्योर कर पाए, ठीक है। तो ये 30%, 20% सेविंग्स है डेट रिपेमेंट। डेट में मतलब आप मंथली बिल देते हो, जो क्रेडिट कार्ड बिल हो गया, ठीक है, तो वो सब भी सेविंग्स और डेट रिपेमेंट में 20% उसका अंदर आना है। सो ठीक है। एंड उसके बाद
आपका जो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि आपका अगर अर्निंग 30,000 पर मंथ है तो नीड्स मतलब आपका जो बेसिक नेसेसिटी है 15,000 में आपको निपटाना है। जैसे कि रेंट आपको 15,000 का अंदर ही करना है, रेंट, ये बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो जो आपका नीड्स है 15,000 के अंदर आपको करना है। एंड वांट्स मतलब आपको अगर बाहर खाना है, थोड़ा सा तो मूवी देखना है और ये सब, जो अपना आपको क्लोथ्स खरीदना है, ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदना है एंड ऑल, तो उसमें 9,000 का अंदर आपको निपटाना पड़ेगा। एंड 6,000 तो आपको मस्ट सेव करना ही पड़ेगा। वांट्स में आप इधर उधर कर सकते हो इफ़ यू आर पर्सन लाइक मी। मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ज़िंदगी एक ही है जी। अब जी रहे हो, सेव कर रहे हो, ठीक है, जियो भी साथ साथ। दैट्स वाई 30% ना। ऐसा नहीं कि आप 30% को एकदम आप इरेडिकेट करके आप एक पूरा सेविंग्स कर रहे हो, बाद में क्या पता चला कि भगवान ना करे, खुदा ना करे कि आपको मौका ही नहीं मिला ज़िंदगी जीने का। तो यू हैव टू लिव, यू हैव टू सेव, यू हैव टू लाइक सेटल एज ए वेरी मिनिमल लाइफस्टाइल, जिसमें आपका सब चीज़ बैलेंस आके चले। सो ये जो आप अगर इसको फॉलो करते हो तो यू कैन अचीव योर बेस्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ एंड फाइनेंशियली सिक्योर भी हो जाओगे, आपका नीड्स भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका आपका जो ज़रूरत भी उसके अंदर पूरा हो जाएगा। सो यू हैव टू मेंटेन दिस discipline in your life. Okay, so keeps your spending under, why it is important, because keep under control, ensure saves every month, helps you avoid debt, build a secure future, easy to use. Okay, and चलिए देखते हैं। तो आपको अगर इतना समझ में आ गया तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मैंने या ये उन्होंने, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उनका जो नीड्स में हाउसिंग, यूटिलिटीज़, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस, डेट रिपेमेंट, यहाँ पे उन्हें नीड में रखा है क्योंकि पता नहीं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा शायद डेट रिपेमेंट करना। सो दैट्स वाई उन्हें 50% अपने नीड्स के अंदर ही डाल दिया, बिकॉज देयर चॉइसेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस एंड होम मेंटेनेंस। ओके, एंड वांट्स में उन्हें डाइनिंग आउट, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, हॉबीज़, केयर, पर्सनल केयर, पेट केयर, इवेंट्स, ये सब उन्होंने इंक्लूड किया है। इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड एजुकेशन फंड। ओके, हाउस का, कार का जो पेमेंट वो ईएमआई एंड सो ये सब सेविंग्स में आ जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड आई होप यू रियली लाइक दिस। इट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इज़ वेरी सिंपल, इजी टू यूज़। मंथली पे चेक टू पे चेक आपका जो मतलब इनकम है उसको आप इजीली बैलेंस कर सको। और थैंक यू लास्टली कि आपने इसे परचेज़ किया एंड यू हेल्प मी अलॉट एंड रियली हेल्प मी अलॉट। सो थैंक यू, आई मेड दिस। इसको मैंने बनाने में बहुत टाइम लगा एंड थैंक यू सो मच। एंड आई से ऑल द बेस्ट आपका लाइफ में, आप अपने फाइनेंशियली गोल्स सब मतलब द फुलेस्ट यू अचीव। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ मेंटेन द डिसिप्लिन इन योर लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बजट मैंने दिखाया था। सो ऐसा दिखेगा आप जब बजट करोगे। सो अगर ये क्या है कि एक्चुअल में आप कितना खर्च कर रहे हो। जब अब ये मंथली होगा, सोचिए ये महीना मैंने इमरजेंसी फंड के लिए पे कर दिया है, लेकिन इस बार मैंने 5,200 रुपीज़ पे किया है। आपने बजट किया था 5,000, इट्स फाइन। तो इसका डिफरेंस 2,000 रुपया ज़्यादा आपने किया, इट्स ओके। म्यूचुअल फंड में आपने 10,000 रुपया सोचा था कि 10 करूँगा, तो 10,000 ही आपने किया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि सोचिए यहाँ पे मैंने सैलून में मैंने 2 बार चले गया। सोचिए मेरा घर में एक शादी था एंड बर्थडे पार्टी था, तो सैलून एंड ग्रूमिंग में मैंने 2,000 खर्चा कर दिया था। फिर बाद में मुझे फिर से खर्चा करना पड़ा 1,000 रुपया। सो मैं इसे ऐड कैसे करूँगा, यहाँ पे इजिकल टू डाल के इसको मैं जस्ट, या फिर आप मैनुअली कैलकुलेट करके आप ऐड करो, नहीं तो आप प्लस 1,000 रुपये यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये मेरा 1,000, सॉरी ये 100 हो गया। इसको 100 रुपीज़ इससे करो तो 3,000 हो गया। तो आप ऐसा भी ऐड कर सकते हो, जैसे सिंपल ट्रिक। नहीं तो आप ऐसे ही मैनुअली एडिट करके आप कर सकते हो, इट्स फाइन, ठीक है। मैंने बजट किया था लेकिन 3,000 ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया। सो इसी तरह आप आप डेली एक्सपेंस ट्रैक कर सकते हो, बजट कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि आपने बजट ओवर बजट कर दिया है, तो आप उसको
कहीं पे भी कमा सकते हो, आपको खर्च कम करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे देख के पता चल जाएगा कि आपका पैसा सच्ची में कितना, 18,000 रुपये आपके पास अभी भी बचा है एक्चुअली में। लेकिन जब बजट किया, आप ओवर बजट कर दिया कि तो आपके पास पैसा 14,000 ज़्यादा बजट कर दिया आपने, तो यहाँ पे माइनस में आ रहा है। सो इसको आप ठीक कर सकते हो बजटिंग सेक्शन में जाके, या फिर तो थैंक यू सो मच अगेन, ऑल द बेस्ट।